Okay, chalo, let us start today's class. So, what were we studying in the last class? You remember? We were dealing with चंपारण में Gandhiji. Yes. We were dealing with Gandhiji, Mr. Gandhiji. Yes. हम लोग गांधी जी के साथ डील कर रहे थे और हम लोग देखे हैं बहुत सारा चीज उनका अर्ली लाइफ के बारे में, कहाँ पे क्या हुआ, उनका जन्म कहाँ पे हुआ है, वो फिर कहाँ गए थे पढ़ाई करने के लिए. If you remember, he was born in Gujarat. Yes, after that, he got married at the age of 13 years. Then he went to London to continue his studies. Yes. So after that, he registered in the courts of the London. London is England. Okay. So, but he did not, he was not so successful over there. He did not get so much of cases and all. Then we have seen his journey that he came to India, then how he traveled to South Africa or what he have done in South Africa. We have seen everything, okay? And finally, he came back to India. And after that, after coming back to India, his political guru was Gopal Krishna Gokhale, if you remember. And he said that now you don't know about India, first do Bharat Darshan. पहले भारत दर्शन कर लो, फिर आप पूरा भारत दर्शन कर लोगे और उसके बाद आप पूरा अच्छे से मूवमेंट में ज्वाइन करना. अभी कोई भी प्रोटेस्ट मूवमेंट या सत्याग्रह कुछ भी लॉन्च मत करो. तो आफ्टर 1 year he did his first and he came in public in the inauguration of Banaras Hindu University. Okay, just wait. Banaras University he came. Voice is echoing. Okay, why my voice is echoing? Fine. Yes, is voice echoing, dear guys? Guys, yes मैम what is the problem? Hmm, let me see. no ma'am it is good now It is okay. I think some yes network ma'am issue. it is okay now Okay, just wait. Again, you check. Let me know. Okay. मतलब अगर कोई भी दिक्कत होता है ना आप लोग मेरे को बताया करो, क्योंकि मैं व्हाट्सएप जनरली चेक ही नहीं करती. तो इसीलिए अगर ऐसा होता है तो प्लीज आप बताया करो. अभी भी इको, अभी भी आ रहा है इको. no वॉइस इज ma'am इकोइंग. no ma'am सर तो बोल रहे इट्स इकोइंग स्टिल. उत्सव सर ने मैसेज किया है ग्रुप में. आप लोग बता सकते हैं और बाकी पार्टिसिपेंट्स मैम आप आपकी वॉइस कैसी हो रही है? कभी लग रहा है दूर से बोल रही हैं और कभी लग रहा है नजदीक से बोल रही हैं, तो नहीं ये सर, मैं तो पूछिए। हेडफोन का यूज कर रही हूँ तो ऐसा. तागुम, कैन गाइस, यू सी? हाँ, जस्ट डोंट से नाउ, लिसन टू इट फॉर 2 minutes एंड देन से। हाँ, ओके या. So we have seen all these things, and after that, Gandhi ji India में आते हैं. Yes, he returned to India finally on 9 January 1915. Yes, that made his first public appearance. Already we've seen. Then after that, he started some movements that we have already read about the Champaran. Yes, so now he will be starting with the next upcoming events. So now, can you say, is my voice echoing still? ऐसा लग रहा है कि दूर से बोल रहे हैं पास से बोल रहे हैं, ऐसा कुछ है क्या इशू? yes ma'am बीच यस मैम हो रहा है. Okay, let me do one thing. I'll disconnect my Bluetooth again. I'll be reconnecting it. Okay, just give me एक सेकेंड रुकना. अब अभी आवाज देखो, अभी आ रहा है? अभी भी इको हो रहा है क्या? no ma'am अभी मैं मतलब पढ़ाना स्टार्ट करूंगी और बीच में आप लोग को पूछूंगी, अगर अभी भी रिकॉर्ड है आई सी. ओके.
ओके, आई होप अभी नहीं हो रहा होगा, मे बी सम नेटवर्क इशू भी कभी कभी रहता है, क्योंकि नाउ एक्चुअली इट्स raining so much in Guwahati right now in my place, so maybe due to that, I don't know, but let us start now. Okay, chalo, is it still echoing or it's okay now? Okay. Okay, ma'am. Okay, chalo. Actually, the Gandhian phase, the Gandhian last 10 years of UPSC, if you can see here, Gandhian phase से आपका 8 क्वेश्चन आ चुके हैं, ठीक है? तो इससे ना हमेशा बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, क्वेश्चन देखेंगे, we'll see every question here. Okay, so see here, you can see here, मतलब क्या क्या चीज से क्वेश्चंस आते हैं आप यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे सत्याग्रह से क्वेश्चन आते हैं 2, then important associations and organization जो कि उन्होंने फॉर्म किया है, इससे ये आए थे, ये सब प्रीवियस ट्रेंड होगी। ब्रिटिश और गांधी जी के बीच जो भी नेगोशिएशन हुआ उससे 2 आए थे, करंट अफेयर्स लिंक को भी हम देखेंगे कैसे आया है, और मूवमेंट बेस्ड। ओके, so we will see all the questions. We will see all the questions. जो भी 9 question, 8 questions आए, we will see all the questions. Don't worry, and along with this, we'll also see the questions which came in the other exam like RRB and SSC and all these things. Okay, chalo, after coming back and after giving public appearance in PHU, he started the Champaran Satyagraha. So I'll just give you a brief glimpse about the Champaran Satyagraha. Okay, so before giving a glimpse of Champaran Satyagraha, actually I forgot to tell you about this thing when we were studying about Gandhiji in South Africa. Okay, Gandhiji, if you remember, actually Gandhiji opposed the whatever the racial discrimination was going on, right? He opposed, we know that. But he also formed ambulance corps in the support of the Britishers. एंग्लो बोर वार चल रहा था, तो वो बोर वार्स में साउथ अफ्रीका ही established volunteer crop which is called ambulance corps, and there he had 1100 people. Okay, so he helped the British government on humanitarian basis, and whoever the soldiers who were injured soldiers, so they were helped. Okay, so ब्रिटिशर को उन्होंने हेल्प किया था, so इसीलिए he was given केसरी हिंद medal. Okay, so in exam you may get this question, and केसरी हिंद medal was given by British government. I forgot to tell you in the last class, it was given by British government in 1950 to Gandhiji, and if it is asked why, it is for his ambulance corps which he established. Okay, because he helped Britishers in South Africa, so it was like that. Okay, and remember this was given in South Africa, means for his work in South Africa, not for anything in India. Okay, so his early movement we have seen about the Champaran. Today we'll see about the Ahmedabad strike and Khera Satyagraha. Okay, so let me give a quick revision about this Champaran. If you see Champaran is a district. Okay, it is actually a place in Bihar, and Rajkumar Shukla invited Gandhiji for witnessing the injustice. मतलब क्या हो रहा था ना, ये 3 तृतीय सिस्टम चल रहा था वहां पे क्या हो रहा था कि जो आपका जो फार्मर्स थे वहां पे, तो बोला गया था कि आप लोग का जितना जमीन है, अगर एक जमीन है जिसमें 20 हिस्से है, मतलब 20 पार्ट्स अगर है, तो उसका 3 भाग में आपको नील का खेती या इंडिगो खेती करना पड़ेगा. इन 3 पार्ट्स यू हैव टू डू इंडिगो कल्टीवेशन. But farmers were not happy. Okay, farmers were not happy. Why they were not happy? They were against. Farmer reaction क्या था? They were against the indigo cultivation. इसका भी we have seen the reasons. The reasons were indigo needs lot of water. Okay, and German synthetic dye
came like this. Just German synthetic dye was in the market, which was very cheap because it is synthetic. It's not natural, right? But indigo ये जो है वो natural है, so obviously the cost will be high. And German synthetic dye, it was very cheap, so it was already in the market. So indigo plantation was a loss for the farmer. Okay, मतलब आप मेहनत भी करो और पैसा भी इतना नहीं मिले, तो इसीलिए वो लोग अगेंस्ट है. और राजकुमार शुक्ला जी ने गांधी जी को इनवाइट किया कि ऐसा ऐसा हो रहा है, तो फिर उनके साथ और भी लोग एसोसिएटेड थे, राजेंद्र प्रसाद, मजहर उल हक और जेडी कृपलानी. If we say where and when गांधी जी started his first movement, it was in Bihar. गांधी जी का पहला चीज इंडिया में जो भी मूवमेंट उन्होंने किया है इंडिया में, सबसे पहले उन्होंने बिहार चंपारण से शुरू किया और ये पहला सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट था. ठीक है, इट वाज अ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट. और ऑब्वियसली अगर एक मूवमेंट होता है, ठीक है, तो क्या होता है, वी विल गेट सम रिजल्ट. तो चंपारण एग्रीगेशन एक्ट वाज पास्ड और जो तीन कथिया सिस्टम है उसको एबॉलिश कर दिया है. ठीक, उसको एबॉलिश कर दिया है. तो भी बोले थे कि आपका जो बीसीसी का 3 भाग है उसमें आप लोग को करना पड़ेगा, ठीक है, वो एबॉलिश कर दिया गया. और अब वो टैक्स था, वो एक इलीगल टैक्स था जो लैंडलॉर्ड्स लेते थे फार्मर से, वो भी सस्पेंड कर दिया गया. ये आप पहले देख चुके हैं, जस्ट so that was also suspended. So ये हो गया. Now you have to be very very careful in your exam. See here, चंपारण सत्याग्रह was related to indigo. मतलब इंडिगो कल्टीवेशन में प्रॉब्लम हो रहा था ना, कि ये 3 कथिया जो सिस्टम था, इट इज रिलेटेड टू इंडिगो कल्टीवेशन. So if you indirectly say ये चंपारण सत्याग्रह is related to indigo, क्योंकि इंडिगो से तो प्रॉब्लम आ रहा था. But there is another movement which is called indigo movement. So remember, indigo movement and Champaran Satyagraha, which is related to indigo cultivation, are not same. So now we will see ये indigo movement क्या है. Okay, we will see what is this indigo movement. चलो let us see indigo movement क्या है. Indigo movement बोलते हैं. So people generally what happens, no, they get confused with this. The indigo movement और चंपारण में भी तो indigo था, so they used to generally get confused. So this was also non-violent peasant uprising, peasant farmer uprising. Okay, ये बहुत पहले हुआ था. ये actually indigo movement, it happened in 1859. So now can you say, will Gandhiji be associated with this indigo movement? Yes or no? Gandhiji indigo movement से related है? Was Gandhiji associated with indigo movement? Say me. Have you ever studied? No, ma'am. No, Gandhiji was not associated. क्योंकि ये तो 1859 में हुआ था. So don't get confused in this. Okay? Gandhiji was not associated with indigo movement. गांधी जी का कोई लेना देना था ही नहीं इससे. पर ये भी इंडिगो के ही लिए हुआ था. ओके, सो ये कहाँ पे शुरू हुआ था? इट वाज स्टार्टेड इन नदिया डिस्ट्रिक्ट ऑफ बंगाल. नदिया डिस्ट्रिक्ट ऑफ बंगाल. तो गांधी जी तो इसमें थे नहीं, तो कोई और ही होगा ऑब्वियसली. तो हम लोग को देखना पड़ेगा कि कौन लीड किए थे. लेड बाय दिगंबर बिश्वास. तो ये इंपॉर्टेंट है. ओके, क्योंकि इसमें ना बच्चे लोग कंफ्यूज होते हैं. पीपल गेट कंफ्यूज इन दिस. सो आई एम सेइंग इट, दिगंबर बिश्वास एंड see, since I am taking your class from 1885, so this is 1859, no? So I did not get you in this class. I don't know who have taken this class, but I did not get it. So I'm discussing it again. So it was led by Digambar Biswas and Bishop Biswas. They are also called Biswas brothers. Okay. So देखो इंडिगो मूवमेंट कहाँ पे हुआ था? बंगाल में हुआ था, नदिया में हुआ था. ठीक है, it was also a non-violent. याद रखना, it was also non-violent. Okay, it was a model for strengthening the movements like Champaran
सत्याग्रह, क्योंकि ये एक बेस बना था। ओके, इट वॉज अ बेस फॉर चंपारण। इट एक्ट एज अ बेस, acted as base. And newspapers like Hindu Patriot under Harish Chandra Mukherjee and Bengali played Neel Darpan. Okay, Hindu Patriot एक न्यूज़पेपर थे, हरिश्चंद्र मुखर्जी ने लिखा, मतलब पब्लिश करते थे, और एक बंगाली प्ले था नील दर्पण, दीनबंधु मित्रा. Names are very important. They highlighted the mistreatment of peasants by indigo planters. क्या होता था, जो भी mistreatment होता था वो स्प्रेड करने के लिए वो न्यूज़पेपर यूज होता था, उसका नाम था ये, और बंगाली प्ले उसका नाम था ये. ओके, सो दिस इज इम्पोर्टेंट. नाउ मेन डिफरेंस क्या याद रखना है, इंडिगो मूवमेंट अगर बोले, गांधी जी वाज नॉट एसोसिएटेड. कहाँ पे हुआ था? बंगाल में हुआ था. ओके, सो गांधी जी नॉट एसोसिएटेड, सो सम अदर्स विल नॉट एसोसिएटेड. सो रिमेंबर विश्वास ब्रदर्स. ओके, दिगंबर विश्वास एंड विष्णु विश्वास. ओके, तो ये हुआ था बंगाल में. और अगर आप लोग चंपारण देखेंगे, चंपारण मूवमेंट वाज आल्सो रिलेटेड टू इंडिगो कल्टीवेशन, but it happened in Bihar. Happened in Bihar, and गांधी जी इनसे रिलेटेड थे. गांधी जी इज डायरेक्टली रिलेटेड बिकॉज ये गांधी जी का पहला मूवमेंट ही शुरू हुआ था इससे. ठीक है, सो डोंट गेट कंफ्यूज्ड इन दिस. चलो, नाउ वी आर डन विद द इंडिगो मूवमेंट. नाउ वी विल seeing some things, some questions, then we will move to the other thing. चलो, now actually in the year 2017, देखो क्वेश्चंस कैसे बनते हैं तुम लोग देखो. सी, इन 2017 चंपारण सत्याग्रह completed 100 years. So obviously it's a big milestone. 100 years complete हुआ 2017. अब यूपीएससी 2018 में आ गया आपका चंपारण सत्याग्रह. तो ये जो ट्रेंड है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है. देखो, 100 years 2017 में पूरा हुआ, और 18 में आपको क्वेश्चन ही आ गया. तो क्वेश्चंस वैसे बनते हैं, ऐसा नहीं कि चंपारण से क्वेश्चन आएगा ही आएगा, ऐसा नहीं है. जो भी करंट इवेंट्स होते हैं ना, उससे रिलेटेड आते हैं. ऐसा नहीं है कि करंट में कुछ भी हो, मिनिस्टर चेंज हो, इसका नाम क्या है, उसका नाम क्या है, आपको भी पता है, पर जो करंट इवेंट होता है उससे स्टैटिक पार्ट को जोड़ा जाता है. ओके, सो लेट अस सी द क्वेश्चन. Which one is a very significant aspect of Champaran Satyagraha? चलो, active all India participation of lawyers. नाना lawyers तो नहीं थे, students तो नहीं थे, women तो नहीं थे, बिल्कुल नहीं. तो वन तो होगा ही नहीं. एक्टिव इन्वॉल्वमेंट ऑफ दलित हम लोग से तो नहीं पढ़ा, ट्राइबल कम्युनिटी हम लोग से तो नहीं पढ़ा, तो बी भी नहीं है. जॉइनिंग ऑफ पीजेंट अनरेस्ट, यस, पीजेंट मतलब ये तो था, हम लोग ने तो पढ़ा है इसके बारे में, तो आंसर होगा सी. और डी का देखते हैं. ड्रास्टिक डिक्रीज इन कल्टीवेशन ऑफ प्लांटेशन क्रॉप्स एंड कमर्शियल क्रॉप्स. अब देखो इसमें ड्रास्टिक डिक्रीज इन कल्टीवेशन ऑफ प्लांटेशन क्रॉप्स एंड कमर्शियल क्रॉप्स, क्या ये ऐसा है क्या? कमर्शियल क्रॉप्स और प्लांटेशन क्रॉप दोनों में डिक्रीज हुआ था, ऐसा तो हमने नहीं पढ़ा, तो ये तो होगा ही नहीं. सो ऑब्वियसली आंसर सी इज द करेक्ट आंसर. ओके, इज इट क्लियर guys? Now let us move to the next Yes, ma'am. question. Yeah. Let us move to the next question. It is UPSC 2018 question. Economically, one of the results of British rule in 19th century. मतलब इकोनॉमिकली क्या इम्पैक्ट रहा है, इकोनॉमिक इम्पैक्ट से ये क्वेश्चन आया है. ओके, नाउ आई विल गिव इन डिटेल अबाउट दिस. ये क्वेश्चन में हम लोग को जानना है कि ईच एंड एवरी जो पॉइंट है वो क्यों वैलिड है और क्यों वैलिड नहीं है. सबसे पहली बात, अब अगर आप लोग को पूछा जाए, ठीक है, कि इकोनॉमिक इम्पैक्ट्स ऑफ ब्रिटिश रूल क्या है, पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि हमने ये पहले पढ़ा नहीं है. तो सबसे पहला पॉइंट है, देखो इकोनॉमिक इम्पैक्ट बहुत सारा है, पर मेजर मैं बोल रही हूँ डी इंडस्ट्रियलाइजेशन. अब डी इंडस्ट्रियलाइजेशन हाउ इट इज ruin of artisan and handicraft. ओके,
चलो, एक्चुअली ऐसा क्यों हुआ था, रुइन क्यों हुआ था, वो हम लोग को जानना है। क्योंकि चीप मशीन गुड्स, देखो हम लोग का जो लोकल लोग थे वो लोग तो हम लोग हाथ से करते थे, हम लोग तो मशीन यूज करते नहीं थे। पर चीप मशीन गुड्स फ्लडेड इन द इंडियन मार्केट, सो ब्रिटिशर्स लोग मशीन में बनाते थे और क्या किए, बहुत सारे मार्केट जो थे सब में ब्रिटिश गुड्स थे और सारा मशीन में थे। तो मशीन में होगा तो बल्क में वो लोग प्रोड्यूस करेंगे, बल्क में प्रोड्यूस करेंगे तो सस्ता भी होगा, चीप भी होगा ऑब्वियसली। सो क्या हुआ ना, अब हम लोग का जो हैंडीक्राफ्ट बनता था, ठीक है, हम लोग का जो बनता था वो लोग इतना नहीं खरीदते थे। और अभी हम लोग का जो बन रहा है, वट एवर हैंडीक्राफ्ट थे और वट एवर थिंग्स वी आर प्रिपेयरिंग, वी हैव टू सेल टू लाइक इन द यूरोपियन मार्केट्स, राइट। जो भी बन रहा है वो हम लोग को क्या करना है, यूरोपियन मार्केट्स में बेचना है। बट देखो ये ब्रिटिशर्स लोग इतना चालाक थे ना, क्या किया है आफ्टर 1820, एक्चुअली पहले भी इतना मतलब ओपन नहीं था कि यूरोपियन मार्केट में मतलब इंडियन गुड्स जाएगा बिकेगा, इतना इजी तो नहीं था। पर स्पेसिफिकली आफ्टर 1820 यूरोपियन मार्केट्स वेर virtually close to Indian exports. Just imagine the plight. European markets were closed, you can say virtually closed to Indian export. सो अगर आप कुछ बना रहे हो और आप बेच ही नहीं पा रहे हो तो क्या होगा, आपका तो सारा चीज बेकार ही जाएगा ना, ऑब्वियस सी बात है। चलो तो हम लोग क्या अभी देखेंगे, इसका पहला ऑप्शन क्या था, इन क्या ये सही है, इंक्रीज इन द एक्सपोर्ट ऑफ इंडियन हैंडीक्राफ्ट्स, यू टेल मी। हम लोग का रुइन हो रहा था, एक्सपोर्ट तो छोड़ो, आफ्टर 1820 यूरोपियन मार्केट्स आर वर्चुअली क्लोज्ड, विल इट बी करेक्ट और रॉन्ग, इंक्रीज हुआ था या डिक्रीज हुआ था, यस गाइस, ऑब्वियसली इट विल बी रॉन्ग। हम लोग का इंडियन हैंडीक्राफ्ट्स तो जा ही नहीं पा रहे थे ना, आफ्टर 1820 यूरोपियन मार्केट्स तो बंद हो चुका था, तो कैसे जाएगा, इंक्रीज तो कभी भी नहीं होगा, इंक्रीज तो हुआ ही नहीं था एक्सपोर्ट, क्योंकि बंद कर दिया था तो ऑब्वियसली डिक्रीज ही होगा ना। चलो तो अब हम लोग देखेंगे, अब देखो whenever you are having the ruin of artisan handicraftsmen, ये लोग क्या करेंगे, अगर आप लोग का कोई भी चीज बिक बिक नहीं रहा है, you are not able to sell all these things, okay, so what you will do finally, you will return from cities to villages, क्योंकि सिटी में तो आपका काम चल नहीं रहा है, तो आप लोग कहाँ जाओगे, अपने अपने मतलब गांव जहाँ पे वहां जाओगे, तो क्या हुआ, डिक्लाइन ऑफ many cities, many cities and rural ruralization started. ऑलरेडी तो रूरलाइजेशन था ही, पर और भी लोग आ गए, और भी लोग अभी अपनी अपना जगह पे के मतलब वापस आ रहे हैं। तो बहुत सारे आर्टिशियंस ने क्या किया था, अपना जो मतलब जो उनका पेशा है, देयर प्रोफेशन, दे अबैंडन, आर्टिशियंस अबैंडन देयर प्रोफेशन। तो अगर अबैंडन किए तो वो लोग क्या कहते हैं, रिटर्न टू विलेजेस, और विलेज आज क्या करोगे, लोग एग्रीकल्चर। अब देखो ऑलरेडी many people were farmers, we already know, again some people came back from the cities, they came to their villages, and because since they left their job and everything whatever they had, now what will happen, they took agriculture, तो क्या होगा एग्रीकल्चर में, अगर ऑलरेडी
खेत फार्मर्स है और फार्मर्स जुड़ेंगे तो क्या होगा, एग्रीकल्चर ओवरबर्डन हुआ। ठीक है, इसका क्या हुआ, ये मेजर कॉज ऑफ पॉवर्टी था। मतलब अगर मान लो एक जगह पे एक दुकान है, अब तुम वैसे ही सेम दुकान ग्रोसरी सब 3 लगा दो, लोग तो उतने ही है ना, 10 ही लोग हैं, अब 3 बार दुकान में बढ़ जाएंगे तो क्या होगा, जो पहले एक दुकान का अगर सेल 100 रुपीज था तो वो तो कम हो जाएगा। मतलब अगर कम हुआ तो इसका मतलब क्या है, गरीब ही, ऑलरेडी हम लोग गरीब थे और गरीब बनते जा रहे थे। चलो नाउ वी विल सी, नाउ सी हियर, ऑप्शन डी देखो, रैपिड इंक्रीज इन अर्बन पॉपुलेशन। क्या रैपिड इंक्रीज इन अर्बन पॉपुलेशन हुआ था? नहीं, नहीं रूरल हुआ था मैम। पॉपुलेशन बढ़ रहा था ना, तो डी तो कभी नहीं होगा। अब देखो ऑप्शन सी देखो, ऑप्शन सी कॉमर्शियलाइजेशन ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर। हाँ, कॉमर्शियलाइजेशन तो हुआ था। क्यों हुआ था कॉमर्शियलाइजेशन? क्योंकि इंडिगो प्लांटेशन था, इंडिगो प्लांट जो था वो तो हमारा मतलब कॉमर्शियलाइजेशन के लिए ही था ना, मतलब बेचने के लिए ही था, ब्रिटिशर्स लोग तो वही के लिए किए थे, तो कॉमर्शियलाइजेशन तो हुआ था। और अब देखो, ग्रोथ इन द नंबर ऑफ इंडियन ओन फैक्ट्रीज, ये हम लोग को देखना है, क्योंकि देखो जब भी कोई ऑप्शन गलत होता है आप लोग को पता होना चाहिए कि वो गलत क्यों है। ठीक है, चलो, एक्चुअली व्हेन ब्रिटिशर्स केम ना, देयर वाज डेवलपमेंट ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्रीज। इट इज ट्रू, मॉडर्न इंडस्ट्रीज डेवलप हुए थे, बट प्रॉब्लम क्या थी, मोस्ट ऑफ द इंडस्ट्रीज, अरे यार, most of the industries foreign owned। ठीक है, एंड कौन कंट्रोल करते थे? ऑब्वियसली फॉरेन ओन्ड है तो वही लोग कंट्रोल करेंगे। है कि नहीं? चलो तब देखते हैं, ग्रोथ इन नंबर ऑफ इंडियन ओन इंडस्ट्री, इंडियन ओन तो हो ही नहीं रहा था, इंडियन ओन तो था ही नहीं, फॉरेन ओन था। ग्रोथ ऑफ, देखो डेवलपमेंट ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्री हुआ था, सही बात है, पर किसका? वो जो भी था वो फॉरेन ओन था, हमारा हमने नहीं खोला था इतना। सो ग्रोथ ऑफ इंडियन ओन फैक्ट्रीज तो हुआ ही नहीं था, तो ये तो गलत है। सो आंसर विल बी ओनली सी। यस, आंसर विल बी सी। चलो ऐसे हम लोग को कोई भी, आप लोग अगर कोई भी क्वेश्चन, कोई भी एग्जाम हो तो आप लोग को ऐसे ही करना है कि वो गलत क्यों है, कौन सा सही है तो आप लोग को पता होगा जब आप लोग पढ़ेंगे, पर क्यों गलत है वो भी तो पता रहना चाहिए ना, क्योंकि अगर अगर आज आपका क्वेश्चन आया कि ये आपका सही है, तो ऑब्वियस सी बात है नेक्स्ट यूपीएससी में तो ये कभी ऑप्शन आपको देगा नहीं कि कॉमर्शियलाइजेशन ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर। सेम क्वेश्चन अगर पूछेंगे भी तो भी तो ऑप्शन आपका सी कभी वो लोग देंगे नहीं, कि क्योंकि रिपीट तो नहीं होता है, तो वो लोग कैसे देंगे? अगर यही क्वेश्चन आया तो क्या होगा, इंक्रीज की जगह पे डिक्रीज लगा देंगे, ग्रोथ इन नंबर ऑफ इंडियन ओन इंडस्ट्रीज के जगह पे फॉरेन ओन फैक्ट्रीज लगा देंगे, रैपिड इंक्रीज इन अर्बन पॉपुलेशन के जगह पे रैपिड डिक्रीज लगा देंगे इन अर्बन पॉपुलेशन, या रैपिड इंक्रीज इन रूरल पॉपुलेशन लगा देंगे। सो यू हैव टू नो एवरीथिंग। ओके, चलो, नाउ लेट अस स्टार्ट द अहमदाबाद मिल स्ट्राइक। अहमदाबाद मिल स्ट्राइक, हमने अभी तक चंपारण देखा और चंपारण से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हमने देखा, तो अभी हम लोग स्टार्ट करेंगे अहमदाबाद मिल स्ट्राइक। ओके, सो अहमदाबाद मिल स्ट्राइक ये पहला हंगर स्ट्राइक था, हम लोग इन डिटेल पढ़ेंगे इसको। सो इट वाज स्टार्टेड, it happened in 1918 in Gujarat. Okay, so you can see here Gandhi ji, ये this is the photo of Ahmedabad mill strike। Actually हुआ क्या था, it is the first hunger strike। hunger strike मतलब भूख हड़ताल, जो बोलते हैं ना अनशन में बैठ जाना, तो this is the first hunger strike।
Okay. And who invited Gandhi ji to Ahmedabad? Anusuya Sarabhai. Okay. Anusuya Sarabhai. अब इशू क्या था, प्रॉब्लम क्या था? प्रॉब्लम ये था ना कि जो मेनली ये हुआ था कॉटन मिल, ठीक है, कॉटन मिल। जो टेक्सटाइल वर्कर्स थे ना, उन लोग के साथ ना इकोनॉमिक इंजस्टिस हो रहा था। अब क्या इकोनॉमिक इंजस्टिस हो रहा था? We have already studied, प्लेग स्प्रेड हुआ था इंडिया में, तो बहुत लोग मर गए थे, बहुत लोग सफर कर रहे थे, है ना? So the issue was that the textile industries जो मालिक था, owners, they were giving them a plague bonus। मतलब एक जो भी उन लोग का सैलरी था, उन लोग को प्लेग बोनस भी एड ऑन कर रहे थे। मतलब प्लेग बोनस एडेड विद सैलरी, नॉर्मली सैलरी। पर क्या हुआ था ना, ये ना जो एडिशन था ये बंद कर दिया, स्टॉप कर दिए। अब ऑब्वियसली आपको अगर 100 रुपए सैलरी मिल रहा है और आपको बोनस मिल रहा है 20 रुपए, अचानक आपको 20 रुपए बंद कर देगा, तो ऑब्वियसली खटकेगा ना दिमाग। और उस समय क्या हुआ था ना, आप लोग को इफ यू रिमेम्बर अबाउट दिस, लाइक World War I, let me write it here, World War I, okay, it started in 1914, ended in 1918, हम लोग ने देखा था। तो क्या हुआ था कि मतलब जब आपका क्या बोलते हैं कि 1918 में स्टॉप हुआ था, तो क्या हुआ था ना, वो लोग ना बहुत ज्यादा वो थे, मतलब वॉर स्टॉप होने के बाद हमेशा क्या होता है कि इकोनॉमी डाउन हो जाता है ना? तो हर चीज का दाम बहुत बढ़ा हुआ था एक्चुअली, राइजिंग कॉस्ट ऑफ लिविंग। वर्ल्ड वॉर वाज जस्ट ओवर एंड द कॉस्ट ऑफ लिविंग वाज राइजिंग, राइजिंग कॉस्ट ऑफ लिविंग। सो बहुत कॉस्टली हो रहे थे। ओके, बहुत कॉस्टली हो रहे थे, ऊपर से तुमने जो प्लेग बोनस दे रखे थे वो भी बंद कर दिए। अब वर्कर्स ने ना डिमांड किया कि हम लोग का जो सैलरी है, वेज है, उसमें ना आप 50% हाइक करो। हाइक मतलब इंक्रीज करो, 50% उन लोग ने मांगा। ठीक है। अब ऑब्वियसली अगर 50% मांगेंगे, ओनर्स तो देंगे नहीं, और ये तो बात ट्रू है कि ओनर्स तो देंगे नहीं। अब ओनर्स बोल रहे थे नहीं नहीं, 50% नहीं देंगे आप लोग को, सिर्फ हम लोग ना 20% ही देंगे। अब देखो, 50% मांगे, दे रहे हैं 20%, ऊपर से प्लेग का जो बोनस है वो भी काट लिया, और ऊपर से कॉस्ट ऑफ लिविंग बहुत बढ़ रहे थे, है ना? कॉस्ट ऑफ लिविंग भी बढ़ रहे थे, वो लोग बोल रहे थे नहीं नहीं सर, एक्चुअली कॉस्ट ऑफ लिविंग बहुत बढ़ गया, हर चीज का दाम बढ़ गया, तो हम लोग को तो हाइक चाहिए ही चाहिए। अब हुआ क्या कि ये लोग बोल रहे हैं, मिल का जो ओनर, वो लोग भी बोल रहे हैं हम लोग नहीं देंगे, ये लोग बोल रहे हैं हम लोग को चाहिए। तो ये जो अनुसुईया सराभाई है ना, ये लेडी ने गांधी जी को इनवाइट किया कि गांधी जी आप आओ अहमदाबाद, हम लोग का ना जो टेक्सटाइल वर्कर्स है वो लोग ऐसे प्रॉब्लम में हैं। तो हुआ क्या, गांधी जी आए, और गांधी जी क्या किए, गांधी जी बोले कि जो जितने भी वर्कर्स थे, he said, he actually advised टू स्टॉप वर्क, कि आप लोग काम पे मत जाओ, वर्क बंद कर दो, ठीक है, एंड गो ऑन स्ट्राइक, स्ट्राइक करो, काम पे मत जाओ, ठीक है। तो वही माना गया, है ना? और उन लोग को बोला कि अपील देम टू स्टे यूनाइटेड, क्योंकि अगर आप यूनाइटेड रहोगे तो ही आपको मिलेगा, जो भी आप लोग का डिमांड है तो ही आप लोग का फुलफिल होगा, टू रिमेन यूनाइटेड। तो गांधी जी आए और उन लोग को बोले कि आप लोग यूनाइटेड रहो, स्ट्राइक करो, काम पे मत जाओ। चलो इतना तो बोल दिए गांधी जी। और उन्होंने बहुत मीटिंग्स, मतलब एड्रेस किए, है ना? उन लोग को ट्रूथ और नॉन वायलेंस का पाठ पढ़ाए। ओके, नाउ अब देखो, मीटिंग्स तो उन्होंने बहुत एड्रेस किए, सेवरल मीटिंग्स ही एड्रेस्ड।
प्रॉब्लम ये थे ना कि धीरे धीरे उन्होंने देखा कि अटेंडेंस ऑफ द वर्कर्स इन पब्लिक मीटिंग्स वाज डिक्लाइनिंग। मतलब अगर बहुत सारा मीटिंग्स होते हैं ना, लोग थोड़ा मतलब उन लोग का अटेंडेंस कम होने लगा। अगर 100 आते थे पहले, अभी 50 आ रहे हैं, मतलब थोड़ा थोड़ा करके कम हो रहे थे। ठीक है, चलो अब ऐसा तो नहीं चलेगा ना। अगर आप लोग को ही चाहिए और आप लोग ही नहीं आ रहे हो, तो हाउ इट विल बी हैपनिंग। यस, आप लोग का डिमांड तो पूरा ही नहीं होगा। तो उन लोग को मोटिवेट करने के लिए, टू मोटिवेट द वर्कर्स, he decided to go on fast unto death। मतलब जब तक मेरा मौत ना हो जाए तब तक मैं फास्ट में ही रहूंगा। और ये इनका फर्स्ट हंगर स्ट्राइक है। ठीक है, रिजल्ट क्या हुआ? गांधी जी ने ऑब्वियसली मीडिएट किया था, और मिल वर्कर्स ने मतलब जो डिमांड रखी थी 50%, और ओनर्स बोल रहे थे 20%। फिर हमारे गांधी जी एंटर किए, तो फिर उन्होंने मीडिएट किया और वो बीच का रास्ता निकाले, ना तुम्हारी ना हमारी, चलो 35% में डील डन। तो 35% में डील डन हुआ और वेज को हाइक किया गया 35%। ठीक है, तो ये है आपका अहमदाबाद मिल स्ट्राइक। सो हम लोग ने देखा चंपारण में तो जीत हुई है गांधी जी का, और जो भी डिमांड्स थी वो सब भी पूरे हुए हैं। अब हम लोग ने देखा अहमदाबाद मिल स्ट्राइक, वह उसमें भी जीत मिला है ना, 35% हाइक मिला। तो जीत जीत ही जीत थी अब तो। चलो तब अब हम लोग नेक्स्ट मूवमेंट देखते हैं। इसको बोलते हैं ना खेरा मूवमेंट। ओके, खेरा मूवमेंट। खेरा सत्याग्रह 1918। ये 1918 है, आपको शायद से अच्छे से दिख नहीं रहा है, ये 1918 है। देखो ये फोटो, ये खेरा सत्याग्रह का ही है। अब देखो अहमदाबाद मिल स्ट्राइक कब हुआ था? 1918 में। Again, Khera Satyagraha also happened in 1918. You know, Khera Satyagraha happened 7 days after Ahmedabad mill strike. So गांधी जी को ना फिर से खेड़ा जाना पड़ा। खेड़ा भी गुजरात में है, ये एक डिस्ट्रिक्ट इन गुजरात है। खेड़ा इज अ डिस्ट्रिक्ट। सो ये था पहला नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, फर्स्ट नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। सी, बी वेरी केयरफुल। चंपारण क्या था? फर्स्ट सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। सी हियर, फर्स्ट सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। अहमदाबाद मिल स्ट्राइक किया था, फर्स्ट हंगर स्ट्राइक। खेड़ा क्या है? फर्स्ट नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। ओके, अब प्रॉब्लम क्या था खेड़ा में? अब होता तो ऐसा है कि 7 दिन बाद अहमदाबाद मिल स्ट्राइक का सक्सेस के बाद अब इनको जाना पड़ा खेड़ा डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, अब इशू क्या था? इशू ये था ना कि जो उस टाइम ना एक्चुअली फेमाइन, आपको पहले से ही पता है, प्लेग का, प्लेग तो था ही, और उस टाइम ना फेमाइन आया था, अकाल आया था, सूखा पड़ा था। ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है, तो उसमें क्या हुआ ना, क्रॉप फेलियर हुआ। ठीक है, तो पेजेंट्स ने, जो भी फार्मर्स थे, ये सब ने रिक्वेस्ट किया कि इस बार का जो टैक्स है उसको सस्पेंड किया जाए, टैक्स को माफ किया जाए। ठीक है, टैक्स को आप लोग ना टैक्स मत लो इस बार का, जो भी लैंड टैक्स है, क्योंकि इस बार हम लोग का खेती अच्छी नहीं हुई, क्रॉप फेलियर हुआ है, फेमाइन है, प्लेग है। तो उन्होंने रिक्वेस्ट किया कि लैंड टैक्स मत लो। पर गवर्नमेंट तो सुनने वाली नहीं है। वो लोग बोले नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, हमको पता है ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, तुम लोग का अच्छा फसल है। तो गवर्नमेंट नहीं, दे वर नॉट लिसनिंग। ओके, एंड दे वर सेइंग नहीं नहीं, फुल देना पड़ेगा, फुल फुल टैक्स आप लोग को भरना पड़ेगा। Government did not listen, did not listen the request.
वो लोग बोले नहीं देना तो पड़ेगा, देना तो फुल ही टैक्स पड़ेगा। आप ही सोचो, क्रॉप फेलर है, ठीक है, और आपको लैंड टैक्स फुल देना पड़ रहा है, आप कहाँ से दोगे भाई, पैसा कहाँ से दोगे, टैक्स देने के लिए आप कहाँ से पैसा लाओगे? आपका क्रॉप ही फेलियर हुआ है तो पैसा होना भी तो चाहिए ना देने के लिए। अब ब्रिटिशर्स लोग मान ही नहीं रहे, नहीं नहीं देना तो पड़ेगा, आप कहाँ से देगा? तो इसीलिए हुआ ये खेड़ा सत्याग्रह, ठीक है। तो गांधी जी ना, एक्चुअली गुजरात सभा है, ठीक है, गुजरात सभा था, वो ये प्रोटेस्ट को ऑर्गेनाइज किया था, और गुजरात सभा जो है गांधी जी उनके प्रेसिडेंट थे। तो फिर से गांधी जी आ गए खेड़ा, और अब हो गया, मैं तो आ गया हूँ, ठीक है, अब मैं आ गया हूँ, अब होगा पूरा एकदम जबरदस्त सत्याग्रह होगा, ठीक है। और जो गुजरात सभा थी वो ऑफिशियली उसको प्रोटेस्ट को ऑर्गेनाइज कर रहे थे। अभी तक क्लियर है कि वो लोग दे नहीं पा रहे थे टैक्स, तो उन्होंने रिक्वेस्ट किया था, पर रिक्वेस्ट को तो नहीं माने, तो इसीलिए गांधी जी आए। और फिर अभी हम लोग देखेंगे यहाँ पे ना मेन लीडर्स कौन कौन थे। इंदुलाल याग्निक थे और सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। देखो, गांधी जी सपोर्टेड द मूवमेंट, ऑब्वियसली गांधी जी आए हैं तो ऐसे तो आए नहीं, गांधी जी सपोर्टेड, गांधी सपोर्टेड द मूवमेंट, ओके। अब देखो गांधी जी ने सपोर्ट किया है, ठीक है, पर यहाँ पे ना ये सरदार वल्लभ भाई पटेल का बहुत ज्यादा रोल था, ये वन ऑफ द मेन लीडर्स यही थे, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, गांधी जी ने तो सपोर्ट किया। अब मान लो अगर आप कहीं पे लड़ाई कर रहे हो, है ना, और क्या होता है कि पीछे से कोई बड़ा आदमी आके आपका सपोर्ट करते हैं, फिर तो आप शेर बन जाओगे ना, कि अरे मेरे पीछे वो बड़ा आदमी है, मैं तो एकदम शेर हूँ। अब ये लोग ने तो शुरू कर दिया था, अब गांधी आए और गांधी जी ने सपोर्ट किया और मूवमेंट को लीड किया, तो क्या होगा, ये बहुत बड़ा मूवमेंट बन गया, ओके। क्योंकि गांधी जी है और ऑलरेडी गांधी जी का बैक टू बैक सक्सेस आप लोग देखे हैं, चंपारण में भी सक्सेस हुआ है, और 7 दिन पहले अहमदाबाद मिल स्ट्राइक में भी, मतलब जो भी उन्होंने किया है जीते ही है, इट्स अ बिग विन। सो अब ये लोग एकदम शेर जैसा फील कर रहे थे कि अब तो होगा लड़ाई, ठीक है, अब तो होगा क्रांति, ना, नॉन वायलेंस, दे डिड नॉट प्रमोट वायलेंस, लड़ाई का मतलब ये नहीं वायलेंस है। चलो इसमें ना वी विल सी समथिंग अबाउट सरदार वल्लभ भाई पटेल। आई नो आप लोग को पता है ये क्या है, स्टैचू ऑफ यूनिटी, क्योंकि सिंस सरदार वल्लभ भाई पटेल इज रिलेटेड विद दिस, सो वी हैव टू नो अबाउट हिम, ओके। लेट मी गिव यू अ ब्रीफ about him. This is the Statue of Unity. And where it is? It is in Gujarat. And Sardar Vallabhbhai Patel was a Gujarati. Okay. Chalo, this Statue of Unity, is world's tallest statue. ये आप लोग को भी पता है ना, आप लोग ही पता है। और सरदार जी को क्या बोलते थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल को क्या बोलते थे, हम लोग को जानना चाहिए। ही वॉज कॉल्ड आयरन मैन ऑफ इंडिया, आयरन मैन ऑफ इंडिया, okay. And 31st October is celebrated as, let me change the pen color, 31st October is celebrated as National Unity Day. It is actually birth anniversary, okay, birth anniversary of Sardar ji, so celebrated as National Unity Day, National Unity Day, और इसको राष्ट्रीय एकता दिवस भी बोलते हैं। देखो सब इंपॉर्टेंट है इसीलिए बोल रहे हैं, राष्ट्रीय एकता दिवस, ओके। अब ये क्या है ना,
ये क्यों मनाया जाता है? नेशनल यूनिटी डे और राष्ट्रीय एकता दिवस, इनके बर्थ एनिवर्सरी में क्यों मनाया जाता है? टू प्रोमोट द मैसेज ऑफ यूनिटी, टू प्रोमोट द मैसेज ऑफ यूनिटी, ऑफ यूनिटी, ओके, टू प्रमोट द मैसेज ऑफ यूनिटी। ये नेशनल यूनिटी डे या राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है। ओके, सो ये कब से मनाया जा रहा है? 31 अक्टूबर 2014 से, ठीक है, 31 अक्टूबर 2014 से स्टार्ट हुआ, ठीक है, स्टार्टेड, उस दिन से मनाया जा रहा है 31 अक्टूबर को। एक्चुअली 2014 में स्टार्ट हुआ था, ओके, और 31 अक्टूबर को उसके बाद से हमेशा मनाया जाता है। अब ना मैंने ये बोला कि टू प्रोमोट द मैसेज ऑफ यूनिटी, तो आप लोग को लगेगा कि ऐसा क्यों, हम लोग बाद में पढ़ेंगे कि एक्चुअली इनका रोल क्या था, हमारा जो यूनिफिकेशन था इसमें क्या रोल था, पर मैं आपको बता देती हूँ। ये इनको, इनका जो स्टैचू है, स्टैचू ऑफ यूनिटी क्यों बोलते हैं और टू प्रमोट द मैसेज ऑफ यूनिटी क्यों बोलते हैं ना, हम लोग का जब हम लोग जब मतलब इंडिपेंडेंट हुए, उस उसमें ने क्या था ना, हम लोग का प्रिंसली स्टेट्स थे, ठीक है, और यूनिफाइड नेशन नहीं था। So he integrated over 565 princely states into unified Indian nation. Okay, so उनका एक मोमेंटम रोल है। So हमको उनको उनका जो रोल है वो कोमेमोरेट करने के लिए ये दिन को मनाया जाता है। So let me write here to commemorate his. My voice is clear, right? Yes or यस no? Okay. In यस मैम, integrating, लेकिन बीच बीच में वो थोड़ा कम हो रहा है I बीच। हाँ, आई थिंक ना वो थोड़ा आज हमारे यहाँ पे बारिश है, मे बी उसके वजह से हुआ होगा, पहले तो ऐसा नहीं हुआ था ना कोई भी क्लास में, क्या नहीं हुआ मैम, था? आज हुआ है। ओके, आई थिंक ना वो बारिश की वजह से हुआ होगा, मे बी वही इशू होगा, नहीं तो और कोई। ओके। प्रिंसली स्टेट्स, यूनिफाइड इंडिया नेशन, सो इसीलिए हम लोग यूनिटी बोलते हैं, ठीक है, ये स्टैचू ऑफ यूनिटी, इसीलिए उनका स्टैचू को बोलते हैं। और अब स्टैचू ऑफ यूनिटी के बारे में मैं कुछ और बताना चाहती हूँ। चलो ये पेज है, इसी में लिखती हूँ। स्टैचू ऑफ यूनिटी जो है ना पटेल जी का, तो वो ना 182 मीटर्स है हाइट। और आपको लगता होगा कि ये रैंडम है कि 182 मीटर्स क्यों है, मतलब ऐसा नहीं है कि रैंडमली 182 मीटर्स वो लोग रख दिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो 182 मीटर्स इसीलिए है ना, गुजरात में 182 constituencies है, it represents 182 constituency of गुजरात। ऐसा नहीं है कि रैंडमली हम रख दिए कुछ भी, ओके, गुजरात असेंबली का ये 182 कंस्टिट्युएंसीज को रिप्रेजेंट करते हैं, इनका जो हाइट है। और ये जो स्टैचू ऑफ यूनिटी है ये इनॉग्रेट हुआ था, क्योंकि देखो अगर ऐसा क्वेश्चन आ सकता है ना, हम लोग को पता नहीं है, कुछ भी आ सकता है, सो लेट लेट अस नो एवरीथिंग। सो इनॉग्रेट हुआ था, ऑब्वियसली 31 को ही होगा ना, क्योंकि 31 उनका मनाया जाता है, बर्थ एनिवर्सरी है, तो 31 अक्टूबर को हुआ था, बट 2018 में हुआ था, ठीक है, 2018 में हुआ था। और ये जो था ना, ये डेट जो था जब इनॉग्रेशन हुआ था ना, ये उनका 143rd बर्थ एनिवर्सरी था। हम लोग को तो पता है 31
अक्टूबर उनका बर्थ एनिवर्सरी होता है, इसीलिए हम लोग मनाते हैं। और 2014 से ही हम लोग मना रहे हैं, पर उनका जो स्टैचू था ना वो इनॉग्रेट हुआ था 31 अक्टूबर 2018, और उस साल उनका 143rd बर्थ एनिवर्सरी था। तो उसी साल हम लोग ने उनको, वो जो मूर्ति है उनको इनॉग्रेट किया है। ठीक है, चलो अब हो गया। हम लोग ने देखा कि व्हाट हैपेंड इन द खेड़ा सत्याग्रह। नॉन कोऑपरेशन था, टैक्स पेमेंट वो लोग नहीं कर रहे थे, रिक्वेस्ट किए थे, दे रिक्वेस्टेड दैट वी इस बार का जो टैक्स है माफ कर दो, बट दे डिड नॉट लिसन। ऑब्वियसली ब्रिटिशर्स है, दे विल नेवर लिसन ना, वो लोग कभी नहीं सुनेंगे। तो फिर गांधी जी आए और उन्होंने सपोर्ट किया, और बहुत सारे और भी लीडर्स थे, पर मेन लीडर्स में इंदुलाल याग्निक और सरदार जी थे। ओके, सो नाउ रिजल्ट क्या था? रिजल्ट था कि देखो बहुत अच्छे रिजल्ट थे। टैक्सेस फॉर द करेंट ईयर, जो साल चल रहे थे उसका, और देखो नेक्स्ट ईयर का भी, ये तो उनका डिमांड ही नहीं था। उनको तो सिर्फ करंट ईयर का रिलैक्सेशन चाहिए था, करंट ईयर और नेक्स्ट ईयर दोनों का माफ हो गया, वेट वीव्ड, माफ हो गया, चलो अच्छा है। इंक्रीज रेवेन्यू रेट वाज रिड्यूस, रेवेन्यू रेट भी रिड्यूस हो गया, बहुत अच्छी बात है ना। और कॉन्फिस्केटेड प्रॉपर्टीज वे रिटर्न टू द फार्मर। अब कॉन्फिस्केटेड प्रॉपर्टीज मतलब क्या होता है ना, इफ यू कॉन्फिस्केटेड का मतलब टू टेक समथिंग अवे फ्रॉम समबडी एज अ पनिशमेंट। ओके, मतलब मान लो तुम्हारा एक पेन है, मैं जबरदस्ती, नहीं तुमने ये गलती किया है, अब तुम अपना पेन मेरे को दे दो, जबरदस्ती मैंने लिया, तुम देना नहीं चाहते पर मैं फिर भी ले ली, तो उसको बोलते हैं कॉन्फिस्केट। टू टेक समथिंग away from somebody as a punishment. ओके, सो देखो बहुत सारा अच्छा अच्छा चीज हुआ है। खेड़ा सत्याग्रह में जीत हुआ, अहमदाबाद में मिल स्ट्राइक पे जीत हुआ, फिर चंपारण में भी जीत हुआ, तो बहुत सारा चीज ऐसा था जिसमें गांधी जी का बैक टू बैक जीत हुआ। ओके, so see today now it is about to be 9, but I started the class little bit late ना, and और तो इसीलिए मैं चाहती हूँ थोड़ा हम लोग क्वेश्चंस देख लेते हैं। आप लोग मतलब सपोर्ट करेंगे, रहेंगे क्लास में, थोड़ा यस मैम, क्वेश्चंस यस। देखते हैं, या क्योंकि हम लोग का थोड़ा लॉस हुआ है ना आज, तो हम लोग देखते हैं। चलो, और हाँ, अभी तक हम लोग ने जो भी पढ़ा है ना, मैं एक ब्रीफ आप लोग को क्रोनोलॉजी दिखाती हूँ, देखो इंपॉर्टेंट है प्लीज। 2 अक्टूबर 1869 पे he got birth, married at the age of 13 in 1883 with Kasturbai, and in 1888 he reached England, then he landed वो साउथ अफ्रीका कब गए थे? 1893 साउथ अफ्रीका, और किन के साथ गए थे? दादा अब्दुल्ला के साथ। ओके, then he in 1893 only he was traveling from, if you remember, he was traveling from Durban to Pretoria, and he was thrown at this station, okay, Peter Martinsburg station, and he faced racial discrimination, and it happened in South Africa. उनको ट्रेन से धक्का मार के निकाल दिया गया था फर्स्ट क्लास से, क्योंकि वहां पे अलाउड नहीं थे, सिर्फ गोरे लोग ही जा सकते हैं फर्स्ट क्लास में, एंड गांधी जी वाज हैविंग अ वैलिड इन मतलब पास। ओके, और 1894 में ही फाउंडेड नेटल इंडियन कांग्रेस इन साउथ अफ्रीका। ओके, ये साउथ अफ्रीका में हुआ था। Then he, in 1899, he established ambulance corps during Boer War, ये भी साउथ अफ्रीका में ही हुआ था। ओके, हमने देखा है। फिर इन 1903 वो एक न्यूज़पेपर पब्लिश करते हैं, जो मतलब स्टार्ट करते हैं, जो जिसका नाम था इंडियन ओपिनियन, वो भी साउथ अफ्रीका में हुआ था 1903 में। ओके, सो फिर 1904 में ही he established Phoenix settlement. Okay, then if you remember, he established Tolstoy firm in 1910. Then in January 1915, गांधी जी रिटर्न टू इंडिया, और ये जो रिटर्न था ना, ये परमानेंट रिटर्न था।
वो पहले भी आए थे, इफ यू रिमेम्बर, वो पहले भी आए थे, वो 1901 सेशन में पार्टिसिपेट किए थे। तो वो परमानेंट नहीं था, पर ये जो रिटर्न है ना वो परमानेंट रिटर्न है। और हमने आज ही के क्लास में देखा है, उनको केसरी हिंद मेडल मिला था, ब्रिटिशर लोग ने दिया था 1915 में। क्यों दिया था? फॉर एम्बुलेंस कॉर्प्स, उन्होंने जो सेटल किया, उन्होंने जो एस्टैब्लिश किया था, है ना, टू हेल्प द ब्रिटिशर्स इन द बोर वार्स। फिर साबरमती आश्रम 1917 में वो किए थे। फिर हम लोग चंपारण देखे, वो पहला सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट है 1917। अहमदाबाद मिल स्ट्राइक हम लोग ने आज ही देखा है, फर्स्ट हंगर स्ट्राइक है। ठीक है, फिर ये आफ्टर 7 दिन बाद क्या होता है, खेरा सत्याग्रह, वो फर्स्ट नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट है। ओके, चलो नाउ लेट अस सी सम क्वेश्चंस। ओके, आई विल नॉट टेक योर मच टाइम, डोंट वरी। सो इन इंडिया द फर्स्ट मेजर पब्लिक अपीयरेंस ऑफ महात्मा गांधी वाज इन, यस बताओ, ऑप्शन सी। चंपारण। नो 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 बनारस। नो 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 नो, नॉट चंपारण। चंपारण तो मूवमेंट था ना, वो तो सत्याग्रह का स्टार्ट है। देखो क्या है, देखो गलत हो गया ना आप लोग। मेजर पब्लिक अपीयरेंस, पब्लिक अपीयरेंस पे ध्यान दो। वो गोखले जी ने बोला था ना 1915 में तुम आए हो, पहले इंडिया भ्रमण करो देखो। फिर हमने देखा बनारस यूनिवर्सिटी का इनॉग्रेशन में वो पहली पब्लिक अपीयरेंस देते हैं। ठीक है, और बनारस यूनिवर्सिटी किसने एस्टेब्लिश किया था? यस यस यस। गोखले। नो, गोखले वाज द पॉलिटिकल गुरु, पॉलिटिकल गुरु, पॉलिटिकल गुरु ऑफ गांधी। कौन थे पता है? गोखले। बीएचयू किसने एस्टैब्लिश किया, भूल गए क्या? मदन मोहन मालवीय और एनी बेसेंट। मदन, सॉरी, मोहन मालवीय। आप लोग रिवाइज नहीं कर रहे हो तब। एंड एनी बेसेंट, प्लीज रिवाइज, जो भी पढ़े है ना, रिवाइज नहीं करोगे तो सब भूल जाओगे। ठीक है, चलो। वेयर वॉज द फर्स्ट सिस्टमेटिकली ऑर्गेनाइज्ड एक्ट ऑफ मास सिविल डिसओबीडियंस इन इंडिया, कंबाइनिंग नॉन वायलेंट प्रोटेस्ट विद लीगल डिफेंस अगेंस्ट, ओके, मतलब पूछ रहा है कि पहला सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट कहाँ पे हुआ था, पहला सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट कहाँ पे हुआ था, बताओ। चंपारण। सिविल डिसोबीडियंस चंपारण में हुआ था, है ना, हम लोग आज ही पढ़े हैं, चंपारण में हुआ था पहला सिविल डिसोबीडियंस। ओके, चलो ना, नेक्स्ट देखो, अहमदाबाद मिल स्ट्राइक के बारे में अभी पूछा गया है, तो हम लोग को अभी देखना है। और ये देखो क्या क्या करेक्ट है वो पूछा है। गांधी जी पार्टिसिपेटेड, यस गांधी जी पार्टिसिपेट तो किए थे गांधी जी ने। अब अनुसुईया बेन, सिस्टर ऑफ अंबालाल साराभाई, सपोर्टेड द वर्कर्स, हाँ ये भी सही है, हमने देखा अनुसुईया बेन ने, मतलब अनुसुईया जी ने गांधी जी को बुलाया था कि आ जाओ आप अहमदाबाद। यस, इट वाज प्राइमरी रिलेटेड टू द डिमांड ऑफ प्लेग बोनस, हाँ प्लेग बोनस उन लोग का कट गया था, और इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा था, तो कंपेयर मतलब कॉस्ट ऑफ लिविंग बहुत ज्यादा था, और प्लेग बोनस भी कट गया था। हाँ ये भी ट्रू है, तो तीनों ट्रू है, सो व्हाट विल बी द ऑप्शन? डी, ऑल 1 2 एंड 3। सी हियर दिस, ये जो क्वेश्चन है सीडीएस में आया है, आप लोग को पता ही होगा, ये दिल्ली पुलिस में आया है, ये है आपका इंटेलिजेंस, आईबी में आया है, आईबी तो पता है इंटेलिजेंस ब्यूरो। ठीक है, चलो अब देखते हैं, गांधी बिकेम द सोल नेविगेटर ऑफ कांग्रेस आफ्टर द डेथ ऑफ विच लीडर, ये हम लोग पहले के क्लासेस में किए हैं अगर आपको याद है। स्वराज्य सभा, होम रूल लीग, कुछ याद आया? होम रूल लीग, यस मैम। बाल गंगाधर तिलक जी का डेथ हुआ था 1920 में, फिर उनको, उनका जो लीग था उनको रीनेम किया गया, और उनका जो प्रेसिडेंट थे वो गांधी जी थे, है ना, तो आंसर क्या होगा? डी, बाल बाल गंगाधर गंगाधर। तिलक। यस, यंग इंडिया नेशनल पेपर वाज स्टार्टेड बाय, ये बीपीएससी में आया था, मतलब बिहार पीसीएस में आया था। ठीक है, जैसे आप लोग का एपीएससी है, बिहार का बीपीएससी होता है, तो फिर आप लोग का एपीएससी है, एपीपीएससी जो भी है। तो आपका 5 है, यंग इंडिया किसने स्टार्ट किया था? गांधी महात्मा जी ने। गांधी।
यस। तो आपको ना और भी मैं कुछ बुक्स मतलब न्यूज़पेपर या ऐसे नाम बता देती हूँ, क्योंकि हो सकता है ये यंग इंडिया के जगह पे कुछ और पूछे। तो महात्मा गांधी ने और भी कुछ कुछ किए थे, हम नाम लिखते हैं। यंग इंडिया ऑलरेडी क्वेश्चन में है, ठीक है। इंडियन ओपिनियन, मैंने हम लोग ने ये इंडियन ओपिनियन देखा था। अगर आपको याद है नेशनल इंडियन कांग्रेस का जो फोटो मैंने दिया था, उसमें जो गांधी जी एक न्यूज़पेपर पकड़े थे, उसका नाम क्या था? शायद इंडियन ओपिनियन ही पकड़े हुए थे उनका हाथ में, ठीक है। हरिजन नाम का एक था, वो भी उन्होंने ही किया है, ठीक है। ऑल दीज वर स्टार्टेड बाय गांधी जी। ओके। चंपारण एग्रीग्रियन कमिटी was appointed in the agreement between, देखो चंपारण एग्रीग्रियन कमिटी जो है ना, ये कुछ भी नहीं है। जो रिजल्ट आया था ना, चंपारण एग्रीग्रियन एक्ट आया था, हम लोग देखे है ना, वो जो कमिटी है वही को वो लोग बोल रहे हैं। तो क्या था वो, किसके बीच था? ऑब्वियसली चंपारण किससे है? गांधी जी से है ना। अब देखो, इंडियन गवर्नमेंट इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है। अब तुम देखो, अनुग्रह नारायण सिंह, हमने देखा ही नहीं इनको, इनका पढ़ा ही नहीं। राजेंद्र प्रसाद, चंपारण से तो नहीं। राजकुमार शुक्ला जी ने उनको बुलाया था, पर गांधी जी में थे ना चंपारण में। तो क्या होगा आंसर? ए, इंडिया एंड इंडियन और यस गवर्नमेंट और गांधी जी के बीच ही, मतलब जो एग्रीमेंट हुआ था उन्होंने उनके बीच ही हुआ था। ये भी बीपीएससी में ही आया था 2025 का, ठीक है। अरे यार ये क्यों नहीं, एक सेकेंड। Let us say which event is considered to be the turning point in, देखो कुछ कुछ ना पॉइंट्स होता है जो आप लोग को क्वेश्चन में हिंट देता है आंसर का। टर्निंग पॉइंट in Gandhiji's political life, okay, from converting him in moderate to a mass leader। अब बताओ इसमें क्या है? अभी तक ऑब्वियसली मैं अगर ये क्वेश्चन दी हूँ तो आंसर इसका क्या होगा? चंपारण ही होगा, क्योंकि हम लोग क्या देखे थे, जालियन वाला बाग अभी तक शुरू नहीं किया, सॉल्ट सत्याग्रह बताई नहीं, रॉलेट एक्ट बताई नहीं। पर सबसे पहला बात क्या है, हमने देखा है गांधी जी का जो पॉलिटिकल लाइफ शुरू होता है इंडिया में और टर्निंग पॉइंट रहता है, सबसे पहला क्या होता है? बिहार चंपारण वाला जो था ना, चंपारण सत्याग्रह, उन्हीं उसी से तो शुरू होता है ना। चंपारण से ही तो उनका सब कुछ शुरू होता है इंडिया में पॉलिटिकली जो एक्टिव हुए, चंपारण से ही शुरू होता है। ये आरआरबी एनटीपीसी का क्वेश्चन है जी का। फिर देखो क्वेश्चन नंबर 8, where was Gandhi's method of satyagraha first evolved? क्वेश्चन ये है, फर्स्ट साउथ इवॉल्व अफ्रीका। साउथ अफ्रीका। बाकी सारा छोड़ो, लेटर फुल्ली डेवलप्ड एज फ्रीडम, ये सब छोड़ो, पहला कहाँ पे हुआ था, बस यही क्वेश्चन है। साउथ अफ्रीका में, ये भी आरआरबी का है। फिर है आपका, विच मूवमेंट मार्क गांधी जी एंट्री इनटू ऑल इंडिया पॉलिटिक्स? क्या है ऑल इंडिया पॉलिटिक्स में, बताओ? चंपारण। चंपारण ऑब्वियसली। चलो नाउ 10, हंगर स्ट्राइक। हंगर स्ट्राइक कौन सा था? महात्मा गांधी ने किया था हंगर स्ट्राइक, तो कहाँ पे था? बी अहमदाबाद। अहमदाबाद मिल स्ट्राइक। यस, हम लोग ने अभी अभी देखा है, दोनों आरआरबी का है, दोनों आरआरबी एनटीपीसी का है। देखो ऐसा क्वेश्चन है, आप लोग सबको सॉल्व कर सकते हो, है कि नहीं? अगर आप लोग सॉल्व कर सकते हो तो आप लोग का एग्जाम तो ऐसे भी निकल ही जाएगा ना। चलो क्वेश्चन नंबर 11, विच लीडर कोलैबोरेटेड विथ महात्मा गांधी? महात्मा गांधी के साथ किसने, किन्होंने कोलैबोरेट किया था? बताओ। वल्लभ सुभाष पटेल। चंद्र बोस हम लोग पढ़े नहीं, राजकुमार शुक्ला चंपारण से रिलेटेड है, लाला लाजपत राय तो हम लोग नहीं अभी तक देखे हैं कि ऐसा कुछ हम लोग ने देखा। और खेड़ा सत्याग्रह बोल रहे हैं तो ऑब्वियसली वल्लभ पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल। अगर मान लो यहाँ पे होता कि याग्निक जो थे, है ना, इंदुलाल याग्निक, तो वो भी करेक्ट होता, ठीक है। क्योंकि हम लोग ने देखा मेन लीडर इंदुलाल याग्निक और सरदार वल्लभ भाई पटेल की थे। चलो 12, ये भी एनटीपीसी का ही, आरआरबी एनटीपीसी। इन विच ऑफ द प्लेसेस डिड महात्मा गांधी
एस्टैब्लिश नेटल कांग्रेस, याद करो, रेशियल साउथ अफ्रीका। डिस्क्रिमिनेशन नेटल कांग्रेस साउथ अफ्रीका, ये एसएससी का है, एसएससी। ओके, सो देखो, जरूरी नहीं है पूरा क्वेश्चन मतलब पढ़ो, कुछ कुछ जो पॉइंट्स है ना उसको देखो, ऐसा अगर करोगे तो टाइम बहुत बचेगा। ठीक है, 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि विच ऑफ द मेजर्स वाज नॉट, देखना लोग ना बहुत गलती करते हैं इसमें, नॉट ए कंसिक्वेंस ऑफ चंपारण सत्याग्रह, मतलब चंपारण हो गया है ना, अब उसका कौन सा रिजल्ट नहीं है इसमें। ठीक है, चलो हम लोग देख लेते हैं। अब देखो, द सराबशी रेंट वाज रिड्यूस, हम लोग को, हमने अभी तक क्या कुछ सराबशी नाम पढ़ा है? नहीं पढ़ा है, मैंने सिर्फ बोला अब टैक्स के बारे में, पर ये देखो रिड्यूस्ड है, हाँ रिड्यूस तो हुआ था, चलो मतलब ये सही है, मतलब सॉरी, दिस इज करेक्ट, ओके ये तो सही है, हाँ हुआ तो था। अबवर्क टैक्स वाज डिक्लेयर्ड इलीगल, यस ये भी हुआ था, सही है। ठीक है, फिर अब देखो ठेकेदारी सिस्टम वाज अलाउड, अलाउड तो नहीं हुआ था, है ना, अलाउ किए थे क्या? ये तो सक्सेस था, तो अलाउड तो कभी हो ही नहीं सकता। द तवान ए फाइन ऑन पेजेंट वाज एबॉलिश, एबॉलिश हाँ बहुत सारा फाइन एबॉलिश हुआ था, तो इसका सही आंसर क्या होगा पता है? आंसर होगा सी, सी इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि इसमें नॉट पूछा है कि कौन सा नहीं है। क्योंकि देखो ऑब्वियसली कोई भी एक अगर कैंपेन होता है, मूवमेंट होता है, चंपारण सत्याग्रह में हम लोग देखिए फुल सक्सेस था, जो भी डिमांड रखा गया था हम लोग देखिए कि माना गया, तो अलाउड तो नहीं किए हम लोग, तो नहीं पढ़े हैं कि कुछ ऐसा अलाउ किए हैं। ठीक है, ये सीबीआई का क्वेश्चन है, और नंबर 14 देखते हैं अभी। ठीक है, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन आई गेस। गांधी जी फर्स्ट ग्रेट एक्सपेरिमेंट इन सत्याग्रह, गांधी जी का सबसे पहला सत्याग्रह, फर्स्ट खेरा। सत्याग्रह कौन सा था? फर्स्ट खेरा। सत्याग्रह, फर्स्ट सत्याग्रह खेड़ा है? चम- रुको रुको चंपारण। रुको 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 रुको, कहा गया ये, देखो चंपारण क्या था, सत्याग्रह नहीं था क्या? तो आंसर क्या होगा? खेड़ा होगा क्या? ना ना, आंसर तो चंपारण ही होगा। अब हम इस पे आप लोग को एक चीज बताएंगे। ठीक है, आंसर ए होगा चंपारण, फर्स्ट सत्याग्रह बोल रहे हैं। ठीक है, आंसर होगा चंपारण। बट अगर आपको क्वेश्चन में आता, बट अगर क्वेश्चन में होता मास सत्याग्रह, देखो ये सब तो चंपारण, अहमदाबाद, खेड़ा सब कुछ तो इनिशियल था ना, मतलब स्टार्टिंग में ये सब हो रहा था। पर जो अगर आपका क्वेश्चन में होगा, यहाँ पे फर्स्ट है तो इसीलिए चंपारण हुआ, पर अगर आपका क्वेश्चन में मास सत्याग्रह रहा ना कभी भी, तो इसका आंसर चंपारण मत देना। ठीक है, इसका आंसर होगा रॉलेट सत्याग्रह, ये जो डी ऑप्शन है ना, सत्याग्रह अगेंस्ट रॉलेट, अभी तक हम लोग पढ़े नहीं है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन होगा रॉलेट सत्याग्रह, हम लोग पढ़े नहीं है अभी तक, तो इसीलिए मैं जस्ट आपको बोल रही हूँ, हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे 1919। ओके, रॉलेट सत्याग्रह 1919, अगर मास सत्याग्रह हुआ तो क्वेश्चन। ठीक है, तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट एग्जाम है, CISF EC। ओके, चलो दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास, थैंक यू, आप लोग ने थोड़ा कोऑपरेट किया और क्लास में रहे। ठीक है, आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग द क्लास। आप लोग को कोई दिक्कत हो रहा है क्लास को अंडरस्टैंड करने में? अगर है तो मुझे बोल सकते हैं प्लीज। नो अगर मैम। ऐसा कुछ है, कुछ आप लोग को मॉडिफिकेशन चाहिए कि कुछ भी आपको चाहिए जो नहीं हो पा रही है, ऐसा कुछ है तो प्लीज आप लोग मेरे को बोल सकते हैं। सी स्टूडेंट्स, ऑलवेज ना, इट्स नॉट कि टीचर बोल रहे हैं आप लोग सुन रहे हैं, कोई भी दिक्कत हो तो प्लीज आप लोग मेरे को प्लीज शेयर कीजिए कि मैम आप ऐसे नहीं वैसे कीजिए, तो हम लोग को ज्यादा फायदा होगा, क्योंकि हम लोग यहाँ पे आप लोग को हेल्प करने के लिए है। हम लोग चाहते हैं कि आपका एग्जाम क्लियर हो और इसी साल हो, इसी बार हो। यस, हम लोग का यही कोशिश है कि आपका एग्जाम क्लियर हो, उसके लिए वी आर गिविंग आवर बेस्ट। तो उसमें हो सकता है कुछ आप लोग का
मतलब मिसमैच भी हो सकता है कभी कभार टीचर के साथ, तो प्लीज आप लोग मेरे को शेयर करना कि मैम ऐसे कीजिए वैसे कीजिए। सजेशंस आर ऑलवेज एक्सेप्टेड। ओके, ओके देन चलो, बाय बाय, गुड नाइट, हैव अ ग्रेट डे, हैव अ ग्रेट नाइट एक्चुअली। चलो बाय बाय, थैंक यू।